स्टार्ट कर लेंगे क्या विखार? चलो स्टार्ट करिए यार। अच्छी बात है, ठीक। एक मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना विखार? ये विजिबल है आपका? जी, कल हमारा डिस्कशन ये वाले स्लाइड तक था, बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन, राइट? सो so we will discuss the enterprise structure or an enterprise briefly now. So the following illustration shows an overview of various business processes running in an enterprise. If you see any enterprise, you'll find this kind of business processes and how they are integrated. Let's see here. See, if you start from the middle, you can see like a procurement. It will be having a procurement department. If you can see the production and as well as fulfillment. So what a production department will do, we know that. See, if the role of fulfillment is of sales department, so if any customer reaches this fulfillment or the sales department, so what they will do if the product is available in the inventory, you can see here the fulfillment. This department is connected to inventory. So what this fulfillment department will do is they'll look into the inventory or the warehouse. So if the stocks are available, अगर वहां पे स्टॉक्स अवेलेबल है तो वो क्या करेंगे, तो वहां से स्टॉक्स लेके कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे. अगर वहां पे स्टॉक्स अगर नहीं है, the stocks are not available in the inventory, so what they'll do, they'll go to the production department, they'll say the production team that to produce this product. Okay, so even to produce that product, that finished product, so what that department needs is some raw materials they needed. Example I have told yesterday, like so if you want to make a paper glass, you need some paper materials. So if you want to buy those paper raw materials, so what you need to do, you need to intimate your procurement department to buy those raw materials. Okay, so again that comes into asset management, that is linked to this one. So now so like this we have so many departments here, like procurement, production, fulfillment. This is linked to again financial accounting. In the below if you see, it is linked to financial accounting and as well as management accounting. So what they will do, they'll track your financial statements. Okay, so then so all this comes under an enterprise. So now in the top left corner, if you can see, that's a material planning. So what the material planning department will do, they will plan the requirement of the materials accordingly. As I told you yesterday, we do have a business process called material requirement planning. What this MRP will do, MRP will the responsibility of MRP team is to keep the stocks in the inventory to up to the required levels all the time. Like as I told you, like if I want to keep like 100 tons or 100 kgs of stocks in my paper glasses in my inventory, that is my maximum limit which I have given to this. So if the stocks comes below to that level, what the material planning department will do, they'll buy the material. So that is what the purpose of this department. So in the top bottom in the bottom corner, bottom left corner, you'll find human capital management. So it is related to HR department. What is HR department will do again? So whatever the human resources needed for all these departments to function effectively, so those human resources will be provided by human capital management. So in the right side, in the bottom right side, you'll have a program and project management. So all these projects, whatever the projects they'll be getting in the workshop level, so those projects will be handled by this project management department. So it's not like all the companies will be having all these departments. Some companies may be having only 2 departments, some companies may be having 3, some companies may be having 4, some companies may be having all these departments. So it may happen. Okay, so a complete enterprise, you can see all these kind of structure you can see. So now we will see the evolution of ERP. The ERP which we're talking about. What is ERP?
Enterprise resource planning. Yes, exactly. Enterprise resource planning. So during early phases of development, integrated solutions were designed for a particular process areas such as, see, as I told you, nowadays, ERP, if you see ERP, that's SAP can cover all the business processes. But in the earlier stages before this SAP, and if you can see the earlier stages, what used to happen is, so they were designed to for particular processes. Like you see two kind of process I'm mentioning here. One is a material management process. The integrated system was known as material requirement planning. This kind of concept is called as material requirement planning. So that is specific to planning activities only. So they won't be involved in any kind of selling activities. Okay. So that is limited to only planning department. So the next is we do have one kind of ERP that itself focuses on manufacturing. Okay, it is also called a manufacturing resource. What they will do manufacturing. Again, they are not going to sell anything. Yeah, they don't have any kind of customer relationship management. So, ERPs are there, but these ERPs are not, properly integrated. They're not integrated to all the departments in an enterprise. So, but if you see, like these integrated systems come with a complete solution for an organization covering major business processes. In early 1990s, it started. The Gartner Group was first used this acronym ERP. So by mid 1990s, ERP system addressed all the core enterprise functions. In the early stages, most of the ERP solutions were focused on automatic back office functions. As I told you, in the starting stages of the ERP, what happened is like, it's not like, you can see the ERP in all the departments. It won't be fine in the sales department, which is in the front end, but in the back end, they might be having that ERP activity. So that kind of solutions they were having in the initially. So we do have automatic back office functions that were not directly affecting customers or general public. But later, front office functions such as customer relation management. But in the later part, what happened is like not only the back end functions, but in the front end functions like customer relation management, like taking the orders from the customers and providing resolutions for those, for the issues, faced by the customers, everything. So these kind of systems, again, ERP came into the front end also. So in front end as well as back end, you can see the ERP in all the stages. The functions of ERP. So this is the major part, we should understand what are the functions of ERP and what are the advantages of it, what are the disadvantages of it, that we should know. We'll expect ERP. So you can see some points here. An ERP system typically performs the following functions. I guess someone is disturbing. Okay, so functions of ERP. What these functions says about is what actually you're expecting from an ERP. So these kind of things you'll see here. Supports the integrated business process inside the organization. So what it will do, what I told you, like we will be having multiple business process in an enterprise. So what this ERP has to do or will do is it supports the integrated business process inside the organization where the data flows across all the business processes, and it improves capital planning and helps in executing organizational plans and strategies, helps speed up the decision making process. As I told you yesterday, like if you don't have an ERP, how it is affecting the sales department can't take a decision like the stock is available or not. Can we provide the stock to customer or not? The customer is demanding for like 100 kgs of this paper glasses. Can I provide him 100 kgs of paper glasses or not? Is it available in the inventory or not? So we can't take a decision immediately. We have to call them or we have to manually go them and visit them. And after checking the stocks only, we can provide it. But what can ERP, what we can expect in ERP is we can take a decision, immediately we can take a decision like, yeah, in the system we can check and we can say like, yeah, sir, 100 is not available, but 90 is available. So we can provide 90 quantity. Okay. So then over the analysis of accurate data helps extend the business network to wider domains. I told it will be a business process can be as a domain also. The different domains it can be extended, expanding the products and services to reach more customers, suppliers, and partners. If ERP will be extended to all the domains, all the departments. If it is moved to suppliers, you can satisfy your customers. By responding to all their queries and by fulfilling their needs. Okay.
and as well as their partners. Where does this partners comes? If you're running a business, you'll find most you should have some partners. Like I said, some products, the customer is asking, but to make that product, like I said, suppose I wanted to make a car, or I wanted to make a bike, or any kind of a product, which needs a welding. I don't have a welding activity in my area. So what I'll do is, like, I'll have an external partner, or a subcontractor who can come and fulfill my activity, who can do the welding, or I'll send the materials to him. I'll send my raw materials to him. He'll do some kind of welding to it. Then he'll send us back. Then what I'll do some finishing, and I'll do some painting. So this kind of activities. So we will be having some partners also in this. So identifies operational risks to improve governance. So what will happen is, like, when you're having an ERP in your entire enterprise, it will be easier for you to assess, how much time it is taking, to work around, or to get a finished product, where actually we are getting some delay, and where actually we are failing to, fulfill the needs. So that kind of an analysis we can do. Provide protection against organizational data breaches. As I told you, how the data breaches will happen. If you're having a multiple ERP systems in your organization, where you're moving data by hand, or you're giving your clerk to pass this data to the financial department, what the clerk will do, he'll try to cheat, and he'll try to see the activity. He'll try to see the document. So this kind of activity will happen. Or if you're using any Gmail or any third-party application to share the data, even that kind of third-party applications can be hacked. Okay, so that is why, if you have if you find any ERP, which integrates all the business process, so and it will be having an in-memory database, so it will act as, against data breaches, and against all the security threats to leakage of information. So makes the organization adaptable to the rapid changes in the business process according to the needs. So if you can analyze the companies, who are having ERP and who don't have an ERP, so the performance, it depends. Why it depends means, it depends on the ERP which you're using. So why it means, it depends on the efficiency of the ERP. So if you have an efficient ERP installed in your system, or in your enterprise, that will definitely, will give a more, that will provide more efficiency than the enterprises which doesn't have any proper ERP, or a single ERP which connects all these, which integrates all these domains. Gives long-term profit by providing means to increase the customer base. Long-term profit. So we can expect a long-term profit. So if you're following this kind of business process with the stable ERPs. Yeah. So SAP functional areas. ERP is a business management software, is usually a suite of integrated applications that a company can use to collect, store, manage, and interpret data from many functional areas. Okay, so that is what we are discussing till now, right? So as I told you, an enterprise will be having multiple business the functional areas. So I'll count each one by one. The major departments which an enterprise will be having. So all these departments, and these departments should be covered by an ERP. If all these departments, if any ERP is covering, that's perfect for an enterprise. So what a financial accounting department will do, it always deals with the financial transactions and data related to the finance. Okay, and as I told you about human resources also, so it always deals with the information related to employees. Customer relationship management, what this CRM will do, it deals with the capturing and managing customer relationship, like by facilitating customer experience to evaluate the knowledge database. Sales and distribution will be there again. What the purpose of sales and distribution? Simply deals with order placement. So this sales department, so the customer will always reach to sales department. So I need this product. Okay, can you provide this? Yeah, I can provide you on your, yeah. So what they'll do, they'll process that order, and they will deliver that product to the customer. So this kind of distribution. So sales and distribution will goes to the SD department. So then we do have a logistics and warehouse departments. So what this logistics will do? So logistics will be used to ship, whatever the products, you are delivering it to the customer. And what the warehouse management will do? This warehouse management will handle the stocks, whatever the stocks which you're having.
Okay, so then we do have a manufacturing and middle management, which all these departments, you're already familiar with. What manufacturing and middle management will do, it deals with the production and production planning activities. What do you mean by production? Production means producing a product, any kind of product. It may be a simple product, the mobile case of your mobile. It may be a mobile, it may be a camera of your mobile, it may be a screen guard of your mobile. So what might be it? May be a small product, small spoon, also a product, can be called as a product. Okay, so the role of manufacturing and material management is to deal with the production and production planning activities. Then supply chain management is there, SCM we will call it as. It always deals with the movement of products, from what it will do. So where actually the product is moving from one storage area to another storage area, our sales department to the production department, our production to sales. So what these kind of activities it will track, and storing, managing, and controlling supplies. Everything comes under the supply chain management. Even sometimes this logistics area comes under supply chain management again. So it depends on the policy of the company. So a company or an enterprise may have all these departments, may have any of the two, any of the three, any of the four. So any activities. So then the last one is the business intelligence. So what this business intelligence department of the group will do, they'll analyze the data and convert the same to information. So whatever the data is there, they'll analyze the data. Whatever the inputs you're giving to the products and what outputs you're getting. What is the market share value? So everything kind of analysis, this business intelligence department will do. So now we have to look into the advantages of ERP. So what are the advantages of having an ERP? From now, it is almost clear for us, like, what are the advantages of having an ERP? By integrating, if you're integrating, ERP means nothing but you're integrating all your business processes into one system. So by integrating all these business processes, the ERP offers the following advantages. What are those? It saves time and expenses. So what it is doing, so manually, you're checking each department about the product. But when you're having an ERP, you can track all the data. You'll be having data in your system, like what quantities are available in the inventory, and what quantities are manufacturing in the manufacturing department, what quantities are available to ship to, to deliver it to the customer. So this kind of data you can track, allows faster decision making by the management, utilizing the data and reporting tools designed in the systems. The manager or the managing team, directors who are sitting in the offices, who don't need to go to the workshop or the inventory levels or to the sales department to look about the stocks. They can handle, they can sit in their rooms and they can track all the data where it flows. So then the single data source and the sharing of data among all the units of an organization. So this is what the integration means. Then helps in tracking every transaction that takes place in an organization from starting till end. We can track, see, as I told you, a procurement cycle, starts with the requirement, how requirement starts, a customer reaches sales department by saying, like, I need this quantity of products, this quantity of, laptops I wanted, this quantity of computers I wanted, this quantity of materials I wanted. What sales department will do, they'll reach the production department. If it is not available in the inventory, they'll say the production department to procure, to produce it. Okay. So what is happening here? Every transaction, that means from sales department to, so production department will produce it, then they'll send it to the delivery department, they'll do the delivery. So logistics department. So all this data, when actually the customer has placed the order, what actually happening, is it available in the inventory? No. In inventory it is available, but only 50 stocks is available. So remaining stocks, going to manufacture in the production area. So when actually the production started, what is the status now? So what and when it can be delivered, So what is happening in the logistics area? So how much time it will take to deliver? So are these kind of things, you can track. So supplies real-time information whenever required. As I told you, whatever the stocks are available in the inventory or what stocks may be produced in the production department, that real-time information you can see in your system. Provides synchronized information transfer in between different functional areas. So what is the purpose of this integration of all these areas? Means the data will flow, data will synchronize among all these different functional areas, such as sales, marketing, finance, manufacturing, human resource, logistics, etc. So all these department, it is having a link between all these department, where the data flows across all these, and all the data will be synchronized. And we do have some disadvantage also. It is not always easy to incorporate, ERP in an organization. ERP suffers from the following drawbacks.
What are the drawbacks? Sometimes the business processes critical to an organization are to be re-engineered to align them with an ERP solution. As I told you, this is the biggest challenge. Where the ERPs are facing. Even now also, it's not like, as I told you, SAP is not a complete solution for each and every organization. Some organizations, if you choose, that kind of business processes may not be suitable for SAP. As an example, the recent project which I'll be working on, it's a classified company. So if you see a manufacturing company to the classified company, for the manufacturing company, I can say, SAP is the best solution, where you no need to do any custom enhancement, any changes you no need to do in the software. But when it comes to this classifieds company, it may be a pharma industry, it may be different kind of a business process, this business process, won't be having a standard solution. In SAP, you are having a flexibility to customize. It will be having some standard values, and then you can customize. As I told you, if you buy a mobile, some mobiles will be having themes, some mobiles may not be having themes. If you buy an iPhone, you can't see any kind of themes over there. You can only change your wallpapers. But if you buy a Redmi phone, there will be having so many facilities. You can change your themes, you can change everything over there. You can change your icons, and you can change your wallpapers. You can put a live wallpaper also. So many things you can do over there. So it's like an ERP. Even in the ERP also, you'll be having so many kind of things in this. So it's not always easy. It's not always easy for each and every ERP, to provide a proper solution for each kind of business. It's not possible for all kind of businesses. You have a particular solution. Sometimes you need to customize more. Sometimes what will happen is like a business will be needed. That business process will align to the ERP 90%. Only the remaining 10% you need to customize it according to their needs. Some businesses will be like this. 60%. It can use the standard process, but the remaining 40% you have to customize it. You have to understand their business process. How this works. Okay, so according to their needs, you have to customize your software. So not all the ERPs will provide this kind of facility, but SAP is having. So the next is cost of complex integration can be very high. As as I told you, ERPs are useful to integrate between the business process. If you're having number of business processes in your enterprise, it will be it will be complex, and it will be cost effective for you to integrate all your business processes and to flow data across all those processes. Switching from one ERP solution to another increases the implementation cost even further. What is happening nowadays? Why the most of the companies are switching to ERPs? Like, as I told you, most of the companies are having multiple ERPs in their system, in their enterprise. They'll be having a different ERPs for the backend processes. They'll be having 2 or 3 ERPs in the front end activities. So what they want is like they want a single ERP solution for their business processes. That is why they are reaching to the SAP by saying like, yeah, we need a single solution for our business processes. So, but it is not easier always. That is why all these companies are charging. It's not like it is not like your MS Office software. If you want an MS Office, what you'll do, simply you'll buy a software from anywhere. You can buy from Flipkart, you can buy from Amazon, you can buy from outlet, or you can go to any computer hardware shop, where computer hardware and software shop, where you can get, you can pay him. He will install you the MS Office, and he will show you like, yeah, this is your MS Office. But there you no need of any customizations. But when it comes to SAP, you can directly buy it from SAP. But it is not like you can use your SAP as it is. Whatever the SAP you're getting there, it's not like you have to use it accordingly. But you need to customize it. You need to configure it. You need to keep some values inside of it. What values you're going to keep it in the ERP means, suppose I'm a company who is manufacturing paper glasses. I should know like how many vendors are available in Hyderabad where I can buy papers. Suppose I have 5 kind of vendors who can provide me papers. Again, newspapers, or the paper raw material. So what I have to do, I have to maintain their data in my system. I have to maintain their address. I have to maintain their account data. I have to maintain
all their activities, previously, how they performed, all kind of data related to a supplier or the vendor I have to maintain. So to maintain all this information, who is going to configure? SAP is not going to configure anything for you. They'll only provide you the software. So who is going to configure? The IT companies, the IT or the consulting companies like this Deloitte, Infosys, Capgemini, and all these companies are providing. So for this only, so these companies, what they'll do, that they'll bid for it, and they'll take the challenge to customize or the configure for that particular company. So that is why you people will be hired for this. Okay, so it is not always an easier task. In order to do all this, this company, whatever the Infosys or the Deloitte is, that this is going to charge so much onto the customer. Who is going to implement this SAP. So that is what. So switching from one ERP solution to another always increases the implementation cost. End users are to be trained for their daily operations. Customization is not preferred. So actually, what will happen here is like even after you configuring SAP for that particular company, who needs an SAP? So again, what you need to do, you have to train their end users how to use it. For that particular company, they'll be having sales department, they'll be having procurement department, but they won't be having the system knowledge. They won't be having this ERP knowledge. They won't be having the SAP knowledge. So what you have to do, you have to teach them how to use this, how to create a PO, how to create a purchase requisition, how to create a sales order. So how sales order can be generated, how to send the sales order to the particular department. So that kind of things, can be given by this consulting company. That consulting company is a responsibility that they should train the end users also. These are some disadvantages always. Okay, so now, so there are so many ERP packages. If you can see, there are a lot of ERP packages. I have provided a link here. What I'm going to do is, like, after this lecture, I'm going to share this link and as well as this PPT in the WhatsApp group, where you can go through all this. This PPT contains yesterday's slides and as well as today's slides. So where you can go through and you can note them down, or you can save it just. So if I can open this link, what I can see is, like, I can see more. I can see all the ERP packages existed in this world. Some of them, if I can count, Microsoft Dynamics is there, which is also called as MSD. Fusion is there, Okta is there, and if I can call, Tally is there. Most of you are familiar with the Tally. Most of this financial institutions, most of this malls, you can see this Tally kind of thing, the financial activities. So Tally is there. So NetSuite is there. So all this Oracle is there. So all these ERP packages are already existed, but now we are talking about the SAP, because which we believe that SAP is better than all those ERPs which are already existed. Okay, so if you want to see all those ERP packages, you can go through this link and you will find all those ERP packages and what each ERP package is providing you. JD Edwards is there. Even you can check that. So all these ERP softwares are available. You can go through this link and you'll find the description also. Okay, I'm not going to waste time on these things, right? So the next is, now we are entering into the SAP. Now we understood that among all these ERP packages, SAP is the best choice to integrate all these business processes. So now we are discussing about SAP now. So SAP MM overview we're talking about. SAP ERP. No, till now I was only discussing about an enterprise structure and ERP, but we were not discussing about SAP. Now we are entering into SAP by believing that SAP is only the proper solution to integrate all these business processes in an enterprise. So SAP ERP is a commercial software. What is ERP? Enterprise Resource Planning again is a commercial software. So what SAP means? Systems, applications, and products. So if you can see the full form. So commercial software that will integrate all information all together in a single software, considering various factors like time and cost. Okay. So what is the purpose of integrating all the business processes into single ERP? Means simply you wanted to save your time and cost. Is it right or not? So organizations can easily meet their business demands with the help of SAP. Yeah. So what SAP can do, we can see here now. SAP business process. SAP MM is known as SAP Material Management System. It is actually what actually MM module will do. MM is a module actually. What MM module will do, it will do in a material management. So what activities will come in a material management, we will see in the further slides. Okay. SAP MM role in a business process is as follows. If you want to see what actually SAP MM will do, or as a functional consultant, what you have to do, you can see here now. A business process in SAP is termed as module. As I told you till now in my discussion, if I go back to the ERPs,
I have always talked about business process. I was saying sales and distribution is a business process. Manufacturing is a business process. Procurement is a business process. Okay. So, but in ERP, but in SAP, especially, we won't be calling it as a business process. We will be calling it as a module. Remember this. is a module. So if you say like, yeah, I'm taking a training in SAP. So people will ask you what kind of, in which module you are taking training. You can say module, material management module. If we have a SD module, sales and distribution, we have a FICO module, finance and controlling. We do have a WM module, warehouse management. So these kind of modules will be there in SAP. Okay. So now SAP materials management is a part of logistics area. But actually this part is it always belongs to your supply chain management or your logistics area and helps to manage the procurement activity of an organization from procurement. So what actually your SAP will do? It will always monitor your procurement activity of an organization. Okay. So now it supports all aspects of material management, planning, controlling, etc. It is the backbone of the logistics area and incorporates modules like sales and this shouldn't be the different point. So sales and distribution, production planning, plant maintenance, project systems, and warehouse management. Again, Rahman, can you mute yourself? Yeah, I'll be muting this. Please don't unmute yourself. Yeah, so we're back now. अच्छा, तो अभी तक लाइक टील नो हम लोग अभी तक ERP के अंदर हर प्रोसेस को एक हर बिजनेस प्रोसेस लाइक हर फंक्शनल मॉड्यूल को एक बिजनेस प्रोसेस बता रहे थे. लाइक मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम लोग बिजनेस प्रोसेस बोल रहे थे, बट SAP के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे? इट्स मॉड्यूल. ओके, विल कॉल इट एज अ मॉड्यूल नाउ. So now I'll come to the point now. It is the backbone of the logistics area which incorporates modules like sales and distribution. इसके अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, इसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स है? Like I said, sales and distribution है इसके अंदर, प्रोडक्शन प्लानिंग है, देन प्लांट मेंटेनेंस है, देन प्रोजेक्ट सिस्टम्स है, वेयरहाउस मैनेजमेंट है. सो ये थोड़ा टॉप मॉड्यूल्स है. SAP के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है, बट मेजॉरिटी ऑफ द मॉड्यूल्स आप लोग देखेंगे अगर गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो आपको ये मॉड्यूल्स मिलेंगे. SD है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, PP उसको हम लोग बोलते हैं इसको, राइट. वेयरहाउस मैनेजमेंट भी है इसके अंदर. सो लाइक दिस. इसके अंदर FICO भी नहीं है, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग है FICO मॉड्यूल, वो भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सो इफ यू आर ए पर्सन लाइक हु इज गुड इन फाइनेंस के अंदर आप अगर अच्छे हैं, उसके अंदर अगर आप माहिर है, तो FICO एक आपके लिए एक अच्छा मॉड्यूल है. टैक्सेशन इसके अंदर आप अच्छा काम कर सकते हैं. तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स के अंदर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑल द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, तो आप SD चूज कर सकते हैं. आप ऐसे पर्सन है जो वेयरहाउस के अंदर काम कर चुके हैं, आपको वेयरहाउस के एक्टिविटीज के अंदर मालूम है. वेयरहाउस के अंदर स्टोरेज को स्टोरेज बिन्स बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज एरिया बोलते हैं इसके अंदर, पिकिंग एरिया बोलते हैं. सो ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको मालूम है तो यू कैन पिक वेयरहाउस मैनेजमेंट. If you are a person who is familiar with the projects, so project systems you can choose. So ऐसे different modules है where अगर आप plant maintenance के अंदर काम कर चुके हैं डिपार्टमेंट में, so then we do have a module of plant maintenance in SAP. So these kind of modules you can choose according to your interest, according to your area of expertise, according to your experiences, according to your educational background. तो अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर आपका एक्सपीरियंस, अगर आपका क्वालिफिकेशन सब अगर मैच नहीं होता किसी भी चीज से, तो इसके अंदर सबसे इजी चीज है, मैं ये बोलता हूँ कि MM आपके लिए इजी चीज है. सो नाउ अगेन द नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ SAP MM. अगर SAP MM चूज करते तो इसके फीचर्स क्या क्या है? SAP MM इज वन ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ SAP दैट डील्स विद मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट. ये SAP क्या करता? SAP MM स्पेशली देखो खाली सिर्फ मटेरियल मैनेजमेंट से ही डील नहीं करता, बट इट ऑलवेज डील्स विद inventory management also, because inventory management is also the parts of logistics area. I've told you SAP management, SAP MM is always deals especially the backbone of logistics area. So logistics area consists of inventory also. So inventory जो भी activities है inventory के, वो भी activities जो है MM के अंदर include होते हैं. Like not all the activities. So कुछ कंपनीज आप देखेंगे, कुछ कंपनीज के अंदर वेयरहाउस का ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहता, छोटे छोटे वेयरहाउस रहते हैं उन लोग के अंदर. कुछ कंपनीज के अंदर बड़े बड़े वेयरहाउस है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन है, जिसके अंदर बड़े बड़े वेयरहाउस रहते हैं, उन लोग के अंदर वेयरहाउस का बड़ा रोल रहता है. सो दे शुड हैव अ WM मॉड्यूल सेपरेटली. कुछ कंपनीज है जिसके अंदर वेयरहाउसेस की ज्यादा अहमियत नहीं रहती, लाइक योर सुपरमार्केट्स आप देखेंगे, इफ यू कैन सी द सुपरमार्केट्स लाइक रत्नदीप एंड ऑल. सो उन लोगों को क्या है, लाइक यू कैन सी इफ दे हैव एन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर फीट,
सामने के 80% ऑफ द एरिया के अंदर उनका मेन जो शॉप है वो शॉप रहेगा, पीछे 10-20% के प्लेस के अंदर वो लोग क्या पैकिंग करते रहते हैं लोग. सो दैट एरिया is like they're having a small kind of warehouse activity. So उन लोग के लिए WM की जरूरत नहीं है. देख that can be covered in your MM module only. So ऐसा आप अगर देखेंगे, it is not like always हर कंपनी अगर ERP खरीदती है, if every company is choosing an ERP और SAP, it's not like आप लोग सब डिपार्टमेंट्स सब मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. नो, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल. आप लोग उनको सजेस्ट करना है कि भाई आपके लिए देखो, आपका वेयरहाउस की एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, ज्यादा डीप एक्टिविटीज नहीं है, आपके बड़े बड़े वेयरहाउसेस नहीं है, छोटे छोटे वेयरहाउसेस है, इसके लिए सेपरेटली वेयरहाउस मॉडल की जरूरत नहीं है. वी कैन कवर दैट इन MM मॉडल. MM के अंदर ही हम कवर कर सकते हैं आपको. सो ऐसा होता. दिस इज व्हाट विल हैपन. नेक्स्ट, material management process ensures that there is never a shortage of materials or any gaps in the supply chain process. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट एक्चुअली एक मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है एक्चुअली बोले तो, मैं जैसा बोला आप लोगों को कि स्टॉक्स इन्वेंट्री के अंदर जब भी जो है, समझो कि मेरा एक शॉप है जिसके अंदर लाइक मैं ग्रोसरी सेल करता हूँ. सो मैं बैक एंड में मेरे को बैकअप रहना पड़ता है कि जितने भी ग्रोसरीज अवेलेबल है क्या आज के लिए सफिशिएंट है ये, क्योंकि एवरीडे का एनालिसिस मेरे को मालूम है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मेरे पास जो है शुगर होना चाहिए, कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल मेरे पास होना चाहिए, कितने पैकेट्स होना चाहिए, कितना मैं सेल कर पाऊंगा. सो उसके हिसाब से जो है मेरे को इवनिंग के लिए बैकअप या कल के लिए बैकअप होना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, the role of a material management is always, it should ensure that there should never be a shortage of materials or any gaps in the supply chain process. सप्लाई करने के अंदर कुछ भी गैप नहीं होना. आप देखेंगे कभी कभी क्या होता, लाइक आप लोग अगर आप बिग बास्केट या अगर विजेता या जो है बिग बाजार, ऐसे अगर ऐप्स, ग्रो फोर्स, अगर ऐसे अगर ऐप्स आप यूज करेंगे जो ग्रोसरीज ऑर्डर करने के लिए एप्लीकेशंस बने हैदराबाद के अंदर, तो उसके अंदर आप देखेंगे कुछ आइटम्स आप पिक करेंगे तो वहां पे आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है. तो उसका मतलब क्या है, उनके इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक्स नहीं है. सो ये स्टॉक्स को मेंटेन करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की. द मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट लोग की जिम्मेदारी है कि वो स्टॉक्स जो है हमेशा जो है अवेलेबल रहे. सो अगर स्टॉक्स वहां पे अवेलेबल नहीं है तो हमेशा क्या होता है, लाइक फ्लिपकार्ट अमेजन के बीच में देखिए. सो इफ आई वांटेड टू बाय अ मोबाइल इन फ्लिपकार्ट, अगर हमेशा उसके अंदर आउट ऑफ स्टॉक दिखाया तो मैं फ्लिपकार्ट से आई मूव इट टू अमेजन, मैं दूसरे जगह जाऊंगा जहां पे मुझे अवेलेबल है हमेशा. So this is what, so अगर ऐसा नहीं होना है आपको, so आपका कस्टमर आपके पास से नहीं जाना है, so what you have to do, so you should maintain this, like there should be never a shortage of all your materials. So then SAP MM speeds up the procurement and material management activities, making the business run smoother with a complete time and cost efficiency. So again there are more 2 points are there. It deals with managing the materials, products and services resources of an organization with the aim of एक्सेलरेटिंग प्रोडक्टिविटी. ये क्या करते हैं ये लोग, इनका मेन मकसद क्या है? प्रोडक्ट्स सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट्स इनको जो सर्विस चाहिए वो सर्विस को प्रोवाइड करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उसको भी प्रोवाइड करना. सो देन विद द एम ऑफ एक्सेलरेटिंग प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी को जितना आप फास्ट करें, जितना आप स्मूथ चलाए, उसके लिए जितने भी जो है वेस्ट हो सकते हैं उसको अडॉप्ट करना आप, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज इंप्रूवमेंट एंड एट ए सिमिलर टाइम बी वर्सेटाइल टू अकोमोडेट चेंजेस इन डे टू डे लाइफ. सो आप हमेशा क्या करना, स्ट्रेटेजीज को चेंज करते रहना. आप ऐसा नहीं है कि भाई देखो लाइक एवरीडे मंडे के दिन अगर आपके ग्रोसरी स्टोर के अंदर अगर लाइक 100 टन ऑफ शुगर की जरूरत पड़ रही है, सो इट वोंट बी सेम ऑन सैटरडे एंड संडे. सैटरडे संडे आपको अलग स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स बहुत आते हैं, आपको रिक्वायरमेंट की बहुत जरूरत होगी, वहाँ पे आपके इन्वेंट्रीज के अंदर ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिजाइन. सो ऐसे जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा उसके हिसाब से आपको अप डाउन करना पड़ेगा. सो दिस स्ट्रेटेजीज यू हैव टू handle. It deals with the procurement process, master data, material and vendor master, account determination and valuation of material, inventory management, invoice verification, material requirement planning. आप लोग SAP MM के अंदर सीखने के पॉइंट्स यही है यहाँ पे आगे. It deals with procurement process. क्या क्या आप सीखने वाले हैं, हमारे जो टॉपिक्स जो शुरू होने वाले SAP MM के अंदर, जो SAP सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, इट स्टार्ट्स विथ मास्टर डेटा. मास्टर डेटा, बहुत सारे मास्टर डेटा एसएपी के अंदर होते हैं. मास्टर डेटा मतलब क्या है? मास्टर डेटा मतलब मैं जैसे बोला आपको कि आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स थे जो आपको पेपर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता था, उसका सप्लायर का डेटा आप मेंटेन करना आपके सिस्टम में, तो सप्लायर को सप्लायर मास्टर डेटा हम लोग बोलेंगे. सो आपको जो है मटेरियल्स चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स यू नीडेड, वो जितने भी मटेरियल्स आपके होना है, आपकी कंपनी में जरूरत पड़ेंगी, आपको पेपर मटेरियल्स की जरूरत है, आपको वाटर की जरूरत है, आपको ऑयल की जरूरत है, आपको डीजल की जरूरत है. सो ये सब मटेरियल्स को हम क्या करेंगे,
मटेरियल मास्टर बोलेंगे, मास्टर डेटा, मटेरियल मास्टर डेटा उसको बोलेंगे हम. सो दिस काइंड ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इन एसएपी. उसके बाद अकाउंट डिटर्मिनेशन. अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या करता है? अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी है, तो वो ही अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन टॉपिक के अंदर आ जाएगा. उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. आप देखेंगे कि जब आप ग्रोसरी स्टोर्स को जाएंगे या कहीं भी जो है लाइक मॉल्स को जाएंगे या शॉप्स को जाएंगे, यू विल फाइंड टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. वहां पे दो काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको. कुछ प्रोडक्ट्स जो एक्सपायरी डेट खत्म पे आ रही होती, उसको जो है वो डिस्काउंट में देते वो लोग. फ्रेश अराइवल जो भी रहते उसको एमआरपी के रेट पे वो लोग बेचते. बट जो ओल्ड स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, 40 रुपीज का अगर शुगर है तो उसको 30 रुपीज में वो लोग बेचते, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट के करीब है, क्योंकि वो खराब होने वाली है. अगर ऑनियन उसके पास है जो ऑनियन खराब होने वाली है, तो उसको लोग चीप प्राइस में बेचेंगे. आप जैसा मैं जैसे बताया, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल मैंने कल लिया था कि फ्लिपकार्ट इज हैविंग ए बिग बिलियन डे सेल विच इज स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट वीक. उसके अंदर आप देखेंगे, इवन मैंने भी देखा है कि 80,000 90,000 के जो मोबाइल से सैमसंग के अंदर, वैसे मोबाइल वो लोग 40,000 के अंदर बेच रहे हैं. तो पर्पस क्या है बेचने का? दे वांटेड टू क्लियर द स्टॉक्स, बिकॉज उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो ओल्ड प्रोसेसर है, वो आज के जनरेशन में नहीं चलेगा. आज की जनरेशन में पीपल आर पिकिंग ए न्यू प्रोसेसर. लाइक सैमसंग के अंदर आप देखेंगे व्हाट इज द लेटेस्ट प्रोसेसर यू आर हैविंग? 888 प्लस भी आ गया अभी. तो जो जो ओल्ड मॉडल्स है उसके अंदर क्या प्रोसेसर मिलता है आपको? 860 का प्रोसेसर आपको मिलेगा, 845 का प्रोसेसर आपको मिलेगा, 7 सीरीज के प्रोसेसर मिलेंगे, 6 सीरीज के प्रोसेसर मिलेंगे. सो पीपल वांट टू अपग्रेड. सो अब वो लोग को स्टॉक क्लियर करना है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ऑफर देंगे, डिस्काउंट देंगे. वो फोन के अंदर सेम फीचर्स है जैसा नया फोन के अंदर है, बट वो लोग डिस्काउंट देंगे. क्यों? दे वांटेड टू क्लियर द स्टॉक्स. सो एक इसमें होता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के अंदर क्या होता है, आप एक मटेरियल को वैल्यूएट करते. वैल्यू कैसा करता है मटेरियल को? मटेरियल की क्वालिटी पे. देखो आप दो काइंड ऑफ प्याज आपको मिलेंगे खरीदने जाएंगे. एक अच्छी प्याज रहती जिसका दाम जो है ज्यादा रहता, 20 रुपीज 30 रुपीज रहता. एक नॉर्मल किस्म की प्याज रहती जिसका प्राइस जो है बहुत कम रहता. सो दिस इज द डिफरेंस वेयर यू डू इन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. And the next year having inventory management. मैंने बताया कि आप लोगों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट, व्हाट एक्चुअली इन्वेंट्री मैनेजमेंट विल डू. सो इन्वेंट्री के जितने भी एक्टिविटीज है, जितने भी स्टॉक्स आपके पास आएंगे, वो स्टॉक्स को वो लोग स्टोर करेंगे, मूव करेंगे, सेपरेट जो रैक्स उसको अलग अलग करेंगे. अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स है जिसको फ्रीजर की जरूरत है तो फ्रीजर यूज करेंगे. आप देखेंगे एक सुपरमार्केट आप जाएंगे, कुछ आइटम ऐसे रहेंगे जिसको फ्रीजर की जरूरत है, कुछ आइटम ऐसे रहेंगे जिसको जो है लाइक गर्म करने की जरूरत है. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है. कुछ आइटम ऐसे है जिसको आप सील ओपन नहीं कर सकते, सील ओपन करेंगे तो खराब हो जाएंगे. सो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उसको स्टोर करना पड़ेगा. सो ये सब कौन हैंडल करेंगे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट. देन इनवॉइस वेरिफिकेशन. इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या प्रोसेस है कि जो भी इनवॉइस आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड करता है, लाइक आपने प्रॉपर मटेरियल बाहर से खरीदा तो उसने आपको इनवॉइस दिया, सो इनवॉइस वेरीफाई करना. सो ये इनवॉइस वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है इसके अंदर. देन वी हैव अ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. मैंने बताया मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. मेन जो भी स्टॉक्स जो है वो पर्टिकुलर लेवल्स से अगर डाउन होता है तो इनका 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 मकसद ये है कि वो स्टॉक्स जो है वो लेवल से नीचे नहीं होना, वो लेवल को मेंटेन करना. वो लोग हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरे इन्वेंट्री के अंदर 100 टन ऑफ स्टॉक हो तो उतना मेंटेन करना है. अगर 90 टन हो गया तो व्हाट एमआरपी विल डू, एमआरपी विल जनरेट ए परचेज रिक्वेजिशन. वो लोग क्या करेंगे? एक परचेज रिक्वेजिशन जनरेट करेंगे और खरीदेंगे बाहर से जितना मटेरियल चाहिए वो लोग को. राइट. सो ये हमारे स्लाइड्स है. दिस इज ऑल अबाउट योर ईआरपी एंड योर एंटरप्राइजेस एंड योर बिजनेस प्रोसेसेस एंड योर एसएपी. ये सब आपका इंट्रोडक्शन है. अभी कुछ क्वेरीज है इसके अंदर? दिस इज और एंड ऑफ दिस स्लाइड. ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा सा नहीं सुन सका इसमें. सैप और ईआरपी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, और ईआरपी का फुल फॉर्म सॉरी नहीं सुन सका. ईआरपी एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है. ईआरपी मतलब क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है. तो ये क्या करता है? ईआरपी मतलब एक एंटरप्राइज के अंदर जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस है ये सबको प्लानिंग करता है, ये सबको जो है एक इकट्ठा करता है, ये सबको इंटीग्रेट करता. ईआरपी का मकसद है कि ईआरपी पैकेज. तो ईआरपी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पैकेज बोलते हैं. उसका मतलब ये है कि वो ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर मतलब जो भी प्रोसेसेस है, ये प्रोसेस पूरा एक एप्लीकेशन के अंदर रहता है. उसको हम ईआरपी पैकेज बोलेंगे. लाइक टैली है, आपको टैली आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोग भाई क्या सीख रहे हैं, आप टैली सीख रहे बोल के बोलते हैं. तो टैली इज एन ईआरपी पैकेज और एक प्रोसेस है. सो ऐसा तो ईआरपी पैकेज बोलेंगे उसको. ऐसे ईआरपी पैकेजेस के अंदर एक एसएपी भी है. तो एसएपी इज एन ईआरपी पैकेज. ईआरपी मतलब क्या है? एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन है. अच्छा, तो ईआरपी एक पेरेंट एप्लीकेशन है, उसके अंदर में मतलब ये एसएपी वगैरह है. आप एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, उसको एक प्रोसेस बोल सकते हैं. ईआरपी इज ए प्रोसेस. ईआरपी मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, डिफाइंड स्ट्रक्चर. लाइक मैं बताऊंगा आपको. यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था लाइक इन माय स्लाइड्स.
ये देखिए एक स्ट्रक्चर, एक ईआरपी का स्ट्रक्चर ऐसा रहता, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग रहता, मटेरियल्स रहता, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये सबको ऑर्गेनाइज करना, इज स्ट्रक्चर, ईआरपी इज ए स्ट्रक्चर। वो अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा को जी। अगर कोई एप्लीकेशन वाला क्या करता है, वो स्ट्रक्चर को अगर वो बोला कि भाई मैं आपको ये स्ट्रक्चर पूरा इंटीग्रेट करके मैं बताऊंगा, तो वो एक ईआरपी है। मतलब कुछ लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये स्लाइड के अंदर आप देखेंगे, मटेरियल्स, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये तीन चीजों का सोल्यूशन बना के मैं अगर एक सॉफ्टवेयर बना दिया, मैं बोलूंगा मेरा भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। बट मेरा ईआरपी, ओके ओके। आई एम नॉट कवरिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ईआरपी। सो एसएपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो क्या किया, मैक्सिमम कोशिश किया कि मैक्सिमम जितने भी प्रोसेसेस है एक ईआरपी के अंदर वो सब कवर कराओ। अच्छा थैंक यू जी। और तो SAP MM ये एक मॉड्यूल है MM। हाँ, एसएपी के अंदर फिर क्या है, बहुत सारे मॉड्यूल्स है। लाइक जैसे यहाँ पे देखिए ये सब प्रोसेस है ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक है, मटेरियल्स एक है, इंजीनियरिंग एक है। तो ये एक एक प्रोसेस को यहाँ पे हम एंटरप्राइज में ईआरपी में क्या बोलेंगे, इसको एक एक को एक बिजनेस प्रोसेस बोलेंगे। मैं मटेरियल्स को एक बिजनेस प्रोसेस बोलूंगा, मैन्युफैक्चरिंग को एक बिजनेस प्रोसेस बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन को एक बोलूंगा। एसएपी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, ये मटेरियल्स के एरिया को इसको डिफाइन किया, ये मटेरियल्स मैनेजमेंट करके डिफाइन किया एसएपी के अंदर, उसको हम जी एमएम जी। मॉड्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोल के, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, सेल्स अलग है। ऐसे भी क्या किया, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के एक सॉल्यूशन बोला कि मेरे पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन है। दिस इज द थिंग। अच्छा अच्छा, या गॉट इट, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स? हमारे पास और 12 मिनट है, तो ये 12 मिनट के अंदर कुछ क्वेरीज है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। कल के कल कल जो सेशन होगा, मोस्टली विल स्टार्ट विद लाइक बेसिक स्क्रीन कैसे रहेंगे एसएपी के अंदर, उसके ऊपर भी मेरे पास प्रेजेंटेशन अभी रेडी है, तो हम लोग वो देखेंगे कल डेफिनेटली टुमारो। If you are having any queries, raise your hands, guys. Hand raise करिए। अगर सवाल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आई कैन एक्सेस चैट बॉक्स एंड हेलो सर। हाँ सर मेरा नाम आरिफ है सर। जी, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। सर मेरी एक डाउट है कि अभी ये जो आप मॉड्यूल बोले ना, MM जी, मॉड्यूल, क्या अभी जो ट्रेन करने का रहता वो जस्ट MM मॉड्यूल रहता या FI के साथ रिलेटेड भी रहता? एमएम मॉड्यूल भी रहता, और लास्ट में जो है, क्योंकि एसएपी एमएम के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अच्छा इंटीग्रेशन नॉलेज भी होना चाहिए। लाइक एफआई के अंदर आपका क्या रोल हो सकता, कुछ काम ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो आपको एफआई से मिलकर काम करना पड़ता है कंपनी के अंदर। तो वैसे अच्छा जितने भी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज है वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। एसएपी एमएम हमारी प्रायोरिटी होगी, ये एक ही काफ़ी है क्योंकि आपको जॉब मिलने के लिए। तो उसके साथ अच्छा साथ जो एडिशनल नॉलेज है जो एफआई की है, एसडी की है, डब्ल्यूएम की है, वो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, वही एक डाउट था मेरे, क्योंकि मेरा एक दोस्त बताया था कि FI CO के बगैर ये FI के साथ कोई ना कोई लिंक से पढ़ते रहते हैं बोल के, और इसी डाउट लग गया था मुझे। कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिसके पास एमएम और एफआई का नॉलेज रहता है, कि कुछ कंसल्टेंट्स के पास एमआई एसडी का नॉलेज बहुत रहता है, एमएम पीपी। सो एमएम के साथ कुछ भी लिंक कर सकते हैं आप, इवन एफआई के साथ भी कुछ भी लिंक कर सकते हैं। तो एडिशनल अगर अच्छा आपके पास का नॉलेज है तो कंपनी से आपको डबल प्रेफर करेगी। पैकेज भी, पैकेज के अंदर डिफरेंस भी रहता। याद रखिए ये चीज। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको एमएम में भी आता, उसको डब्ल्यूएम भी आता, तो उसको क्या है, उसके रिज्यूम के अंदर आप मेंशन करें टॉप में कि एसएपी एमएम और डब्ल्यूएम कंसल्टेंट। सो इसको ज्यादा प्रायोरिटी होता, कभी भी अगर एक मॉड्यूल किसी के पास है तो उससे ज्यादा जो है जिसके पास 2 मॉड्यूल या 3 मॉड्यूल का नॉलेज है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी होगा। मगर मोस्टली पीपल जो है बहुत कम रहते हैं जिसके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स का नॉलेज रहता, क्योंकि अच्छा ऑलरेडी ईच मॉड्यूल, एमएम मॉड्यूल ही बहुत बड़ा है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। आप डीप में, जितना डीप में जाएंगे उतना उतना आप एक्सप्लोर करते रहेंगे इसके अंदर, नए नए हाँ फीचर्स मिलेंगे, नए नए प्रोसेस आपको मालूम होगा इसके अंदर। सो दैट विल बी एनफ फॉर यू। तो एमएम के अंदर आप जितना एक्सपर्टाइज करेंगे दैट विल बी एनफ। मगर इसके पैरेलली भी हम उसका नॉलेज भी रखेंगे, इंटीग्रेशन का, एफआई का भी रखेंगे, डब्ल्यूएम का भी रखेंगे, पीपी का भी रखेंगे। अच्छा, सब में MM टॉप है या सालन? हाँ, एमएम टॉप है। तो ओके, थैंक यू सर। असगर एक सवाल आया है सुबानी की तरफ से, डू वी शुड हैव नॉलेज ऑन ऑल मॉड्यूल्स व्हाइल लर्निंग एमएम? नो नीड, लाइक बेसिक नॉलेज चाहिए। जब से मैंने बताया आप लोगों को कि एक सेल्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज है तो बस अपने मालूम होना कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, सेल्स होते हैं, और क्या होते हैं वेयरहाउस में क्या होता है, वेयरहाउस के अंदर जो जितने भी स्टॉक्स है वो हैंडल होते हैं। तो इस ये बेसिक नॉलेज चाहिए बस। उसके अंदर डीप लेवल में क्या प्रोसेस होता है ये आपकी जरूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि एसएपी के अंदर आप एमएम के अंदर आने के बाद एट द एंड ऑफ योर लर्निंग आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि भाई एफआई वाले का रोल क्या है, एफआई वाले का रोल क्या है।
तो उसके लिए आपको सेपरेटली मालूम करने की जरूरत है। बट हम लोग ड्यूरिंग हम बताएंगे कि भाई ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, देखो ये इसके अंदर आधा प्रोसेस एफआई का है, मगर हम पूरा प्रोसेस करके बताएंगे आपके सामने। लाइक अकाउंट डिटर्मिनेशन है, अकाउंट डिटर्मिनेशन एफआई वाले भी करेंगे, एमएम वाले भी करेंगे, मगर मैं आपको पूरा करके बताऊंगा इसके अंदर देखो ऐसा है प्रोसेस। तो ये डिपेंड्स, लाइक बहुत सारे प्रोसेस है। जैसा देखिए आप स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन है तो डब्ल्यूएम वाले भी करते हैं, एमएम वाले भी करते हैं, मगर यहाँ पे हम पूरा करके बताएंगे इसके अंदर। तो लाइक दिस, तो हमेशा आपको इंटीग्रेट होना पड़ता है कभी किसी ना किसी मॉड्यूल से। सो इवन पीपी मॉड्यूल के अंदर जो होता है एमआरपी होता है, पीपी मॉड्यूल के अंदर वो एमआरपी टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सर हेलो जी जैसे कि हम लोग है ना, मैं तो बीटेक बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है। हाँ तो ढाने तो का क्या फिर उसके जैसे कि अब आगे चलकर इसमें अगर अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती क्या सर, हम लोग को कुछ अकाउंटिंग के बारे में भी नॉलेज रहना चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके लिए एमएम के लिए, हाँ एमएम के लिए। एमएम के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज जरूरत नहीं है। अगर आप एफआईसीओ सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ओके उसके लिए अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए। अगर एमएम आप चूज करेंगे, एमएम के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। ओके सर। अच्छा, एक सवाल चैट बॉक्स में है कि आई हैव ए सही है जी। प्रोसेस व्हाई वी प्रेफर एसएपी। मैंने बताया ईआरपी एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ईआरपी एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को यूज करके लोग जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, मतलब टैली एक ईआरपी है। तो कंप्लीट ईआरपी के अंदर जितने फंक्शंस है वो फंक्शंस पूरे प्रोवाइड करके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना अभी तक। तो वैसे ही अभी भी एसएपी भी कंप्लीट सोल्यूशन करके नहीं बोल सकते हम लोग। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि एसएपी से भी बेटर सोल्यूशन आ सकता है फ्यूचर के अंदर, नॉट नाउ बट आफ्टर 10-20 साल के बाद। क्योंकि एसएपी का फ्यूचर ऐसा है कि अभी भी नेक्स्ट 20 साल तक आप बेफिक्र रह सकते हैं। एसएपी के अंदर एसएपी को कंप्लीट करने वाला कोई सा भी ऐसा ईआरपी नहीं आता सोसाइटी के अंदर, मतलब वर्ल्ड के अंदर, जो कंप्लीट कर सके नेक्स्ट 20 ईयर्स तक। अगर 20 ईयर्स के बाद ईआरपी आता है एसएपी के पास, तो उसको समझने के लिए, उसको ग्रोथ होने के लिए और 20 साल उसको लगेंगे। और इसमें टर्मिनोलॉजी कौन सी रहेगी सर, मतलब जैसे टर्मिनोलॉजी अभी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि वेयर हाउस बताया, फिर इन्वेंट्री बताया, तो सभी जैसे तो मतलब अकाउंट्स के जो बैकग्राउंड के रिलेटेड है उन लोग के है ना, तो ऐसी आगे चलकर अभी थोड़ा और डेप्थ रहेगा क्या टर्मिनोलॉजी? नहीं, टर्मिनोलॉजी रहेंगे जो टर्मिनोलॉजी मैं अभी यूज कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा बेसिक टर्मिनोलॉजी रहेंगे, ज्यादा डीप नहीं रहेंगे। तो ऐसे भी एमएम के अंदर फायदा हुई है, ये ट्रेनिंग जो है हर फ्रेशर लेवल के लिए और जो है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स वालों के लिए भी क्यों कॉमन कर दिया गया कि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफिकल्ट नहीं है, समझने के लिए बहुत ईजी है। जो टॉपिक्स मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, जो भी चीज़ आपके सामने आई, इन्वेंट्री जो वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, यूज कर रहा हूँ, यही वर्ड्स आएंगे आगे भी जाके। ओके ग्रेट, थैंक यू सर। सर इसमें कोडिंग और जावा लैंग्वेज भी यूज होंगी क्या? वो टेक्निकल साइड में होगा, इसके लिए जरूरत नहीं है, फंक्शनल साइड के लिए जरूरत नहीं है। देखिए एसएपी के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं जो आपको एसएपी डेवलप करते हैं। कोडिंग को हम लोग टेक्निकल पीपल, डेवलपर्स बोलते हैं, हम लोग को टेक्निकल कंसल्टेंट्स रहते हैं। उन लोग का काम ये रहता कि वो लोग कोड बनाते, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते। आपका काम क्या रहता है, एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट आपको हमेशा इंटरेक्ट करना पड़ता है क्लाइंट से। लाइक समझो कि आपको हुंडई कंपनी वाला आके बोला कि भाई हमारे लिए एसएपी इंस्टॉल करो, तो आप अगर काम करो तो काम ये है कि हुंडई के लिए एसएपी को एक आसान तरीके से इंस्टॉल करके दे उन लोगों को, कि और उनको बताए कि ऐसा यूज करना। तो तुम्हारा काम ये है कि फ्रंट एंड में आप लोग रहते हैं, आप लोग का काम ये है कि जाके उनका बिजनेस प्रोसेस को स्टडी करना, हुंडई का प्रोसेस कैसा है, कैसा उनके पास कार बनती, कैसा उनके पास सेल्स होती, ये सब स्टडी करके आप उन लोग को बताना कि देखो भाई हमारे एसएपी के अंदर आपका बिजनेस को हमारा सोल्यूशन ये है, हम ऐसा बना सकते हैं आपके लिए, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये कैसा है, मतलब देखिए कि आप अगर एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, आप एक इंजीनियर को कंसल्ट करते हैं, फिर एक मिस्त्री के पास नहीं जाते। इंजीनियर क्या करता है, आके आपको क्या करता है, प्लान समझाता है, साहब आपके पास देखो 180 स्क्वायर यार्ड्स की जगह है, ये 180 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर देखो हम एरिया के हिसाब से जो है 2 मंजिल का परमिशन है, तो 2 मंजिल बनाएंगे अपन। नीचे जो है सिंगल क्या बोलते हैं, एक 3 BHK का जो है घर बनाएंगे, ऊपर जो है 2 BHK के अलग अलग घर बनाएंगे जिसको रेंट पे दे सकते हैं, नीचे बना सकते हैं। ऐसा कुछ प्रपोजल उन्हें देता, मगर इंजीनियर का काम ये नहीं रहता कि वो आके आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करके जाता। उसके बाद जो बैक की टीम रहती है इंजीनियर के बाद पीछे क्या करते हैं, उसके नीचे कुछ मिस्त्रियां रहते हैं, उसके नीचे कुछ वर्कर्स रहते हैं, वो लोग पूरे मिलकर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसी तरह एसएपी के अंदर भी आप लोग इंजीनियर से समझे, सामने फ्रंट एंड में आप लोग सिर्फ आप लोग लोगों को सोल्यूशन बोलते हैं कि भाई देखो कंपनी के लिए एसएपी इस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं, मगर आप जो है उसको कोडिंग करके नहीं देते। आप जो है बेसिक्स फ्रंट एंड में जो जो एक्टिविटीज है वो करके देते, बैक एंड में जो कोडिंग है वो टेक्निकल वाला कर लेता पीछे बैठ के। अच्छा जी
जी ये पॉइंटर हर देना चाह रहा हूँ। ये हर मॉड्यूल का सॉफ्टवेयर अलग अलग रहता क्या है? नहीं नहीं, सेम सॉफ्टवेयर, सब मॉडल्स के लिए सेम सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर है। वहाँ पे वो क्लियरली दिखते रहता है। अगर एसएपी किसी के पास है तो वो लोग देख सकते हैं। एसएपी अगर ओपन करेंगे आप, वहाँ पे आपको एसएपी स्क्रीन मेरे पास होने के बाद मैं आपको शो करूंगा कि वहाँ पे आपको क्लियरली दिखता था मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो डिफरेंटली यू कैन आइडेंटिफाई। एक ही एप्लीकेशन है, अलग एप्लीकेशन नहीं है। एसएपी में पूरे जितने भी मॉड्यूल्स है, पूरे जी, मॉड्यूल्स सॉफ्टवेयर है। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर जो भी सीखना है उसमें सब सीख सकते हैं। यस। जी। यस सर, एक पॉइंट भी ऐड करना चाह रहा और एक था। सवाल है चैट बॉक्स के अंदर, पहले उसका रिप्लाई करता हूँ मैं। S4 हना इज डिफरेंट दैन ECC। हाँ, ECC जैसा मैंने बताया कि पहले ECC था। पहले जितने भी वर्जन थे 2015 से पहले, याद रखिए आप, 2015 से पहले जो SAP बोलते थे उसको, SAP में जितने भी वर्जन आए उसको अब ECC बोलते थे। ओके, सो 2015 के बाद क्या हुआ, और थोड़ा ये लोग ऑप्टिमाइज करे SAP को ऑप्टिमाइज करने के बाद इसको क्या हुआ, ये लोग हना को डिजाइन करे। हना को और ECC को डिफरेंस क्या है मैंने बताया आपको। ECC के अंदर डेटाबेस नहीं होता था। डेटाबेस क्या करते थे वो लोग, डेटाबेस मतलब क्या है, स्टोर करने के लिए। स्टोर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, प्राइवेट दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए लेते थे। लाइक समझो कि कभी कभी आप देखेंगे कुछ रेस्टोरेंट को आप जाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट में पार्किंग का स्पेस रहता। कुछ जगह ऐसे रहता कि वो रेस्टोरेंट में आपको पार्किंग स्पेस नहीं रहता, उन्हें क्या करता, वायलेट पार्किंग रहता वहां पे। आप क्या करेंगे, आपके वो एंट्रेंस के पास एक वहां पे कुछ सिक्योरिटी लोग रहेंगे, तो वायलेट पार्किंग करने के लिए आपका चाबी पूछेंगे, वो आपको एक टोकन लिख के देंगे और बोलेंगे सर आपका कार मैं दूसरे जगह पार्क करूंगा, आपको चाबी दूंगा। वो वायलेट पार्किंग क्या होता है, इन्हें क्या करता, दूसरे का स्पेस यूज करता, वहां पे उसको रेंट पे करता, उन्हें वो स्पेस में क्या करता, कार को स्टोर करता। इसी तरह ECC के अंदर होता था पहले। अब हाना के अंदर क्या हो रहा है, वो लोग दूसरे पर जाके स्टोर नहीं कर रहे कारों को लेके जाके, वो उसके अंदर ही, उसकी होटल के अंदर नीचे अंडरग्राउंड बना दिया हो पार्किंग के लिए। सो SAP हाना को और ECC को ये डिफरेंस है। ECC बोले तो क्या है उसके अंदर, SAP ECC बोलेंगे उसको। ECC मतलब E मतलब ERP, CC मतलब सेंट्रल कंपोनेंट, ERP सेंट्रल कंपोनेंट, ECC बोलेंगे उसको। 2015 से पहले जितने भी SAP इंस्टॉल हुए थे वो सब ECC बोलेंगे उसको। 2015 के बाद जो भी नए नए इंस्टॉलेशन आए वो हना बोलेंगे। हना में क्या क्या वर्जन है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा 1609, 1709, 1809, ऐसे ऐसे मॉडल्स रहेंगे। उसके अंदर भी नए नए वर्जन है। लेटेस्ट वाला कौन सा है SAP के अंदर, रिसेंटली जो लॉन्च ऑफ फरवरी के अंदर 2101 कुछ वर्जन है, ये वाला लेटेस्ट है हना के अंदर। और कुछ सवाल? मोहम्मद अस्सलाम वसीम हैंड वालेकुम। रेस करे हैं, मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर। एक सवाल चार्ट के अंदर है, उसके बाद आपका सवाल सुनेंगे, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। फिर रिमेनिंग कुछ है तो कल देखेंगे। आई हैव ए वन मोर क्वेश्चन, माय बैकग्राउंड इज ट्रिपल ई, हाउ इज नेसेसरी टू मी इफ आई लर्न विच मॉडल शुड आई प्रेफर, प्लीज कैन यू गाइड मी। सो मैं जैसा बताया आप लोगों को, कौन से भी बैकग्राउंड के हो आप लोग, अगर स्पेसिफिकली आप मैकेनिकल के होते तो मैं बोलता कि आप सिर्फ MMA सीखो। तो ट्रिपल ई बैकग्राउंड के है तो आपके पास ऑप्शन है, कौन सा भी चूज कर सकते हैं आप। आपके लिए MM भी सजेस्टेबल है, कौन सा भी मॉडल है। तो MM आपके लिए कुछ 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 हद तक ईजी होता। और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है कि मैं कोएक से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये टाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। मैं इसमें टाइल टाइल मैन्युफैक्चरिंग, टाइल्स बनाती है हमारी कंपनी। जी। तो उसमें मैं स्टोर्स वेयर हाउस मैनेजमेंट में हूँ। तो मुझे माशा- जानना ये है कि मटेरियल इशू और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और शिपमेंट रिसीविंग और परचेस ऑर्डर, देखिए ये किस मॉड्यूल में आते हैं, यानी ये मटेरियल मॉडल में मैनेजमेंट। आता है, MM के अंदर ही आता है। आप सही जगह है। आप आपके पास वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा काम आता है एक्सपीरियंस। आप MM सीखना चाहिए, MM सीखो पहले, उसके बाद WM के अंदर कुछ बेसिक्स भी मैं सिखाऊंगा, उसके अंदर आप ज़्यादा ज़्यादा फोकस करिए। और आप बहुत इजीली समझ सकेंगे WM का जब पार्ट आएगा, या इसके अंदर परचेज ऑर्डर के बारे में आपको मालूम है तो आपको बहुत ईजी होगा समझने के लिए। मोस्टली आप MM देखेंगे, MM के अंदर है कुछ नहीं, परचेज ऑर्डर ही है। कहीं भी जाओ आपको सिर्फ 4 चीज़ें सुनने को मिलते हैं आपको। परचेज ऑर्डर मतलब PR परचेज रिक्वेजिशन आप बोलेंगे, परचेज ऑर्डर एक रहता, एक गुड्स रिसिप्ट बोल के बोलेंगे और इनवाइस बोल के बोलेंगे। 4 ही चीजें आप सुनने को मिलते हैं आपको। एक प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या क्या होते हैं, 4 ही होते हैं ना। तो 4 चीजें आप ज्यादा सीखेंगे इसके अंदर, 4 चीजें सुनेंगे तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो आपके लिए बहुत ईजी होता MM को समझने के लिए, और आपका पूरा एक्सपीरियंस भी काउंट होता है इसके अंदर। और कोई सवाल, या क्लोज कर लेंगे हम लोग, ऑलरेडी 10 बज गए। हेलो वसीम भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। हेलो हेलो। हाँ, my name is Faizan Khan sir. My ओके। question is Flipkart having a big billion days and it is use of SD module or MM module in this deal. उनके अंदर देखिए MM और क्या बोल सकते हैं, उनके लिए SD भी चाहिए, MM भी चाहिए और WM भी चाहिए।
डब्ल्यूएम का रोल उन लोग के अंदर ज्यादा रहता। सो उन लोग के अंदर अगर एसएपी वो लोग इंस्टॉल करना चाह रहे तो उनका बिजनेस प्रोसेस पूरा अगर देखें तो डब्ल्यूएम का ज्यादा बड़ा रोल रहता उनके पास, और एमएम का रहता, एज वेल एज सेल्स के एंड में भी सामने उनसे सेल्स का भी रहता उनके पास, और फाइनेंस भी जरूरत है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैंडल करने के लिए, सारा मॉड्यूल्स भी जरूरत है उन लोग के लिए। Okay, it हाँ is सॉरी use सर, of मेरा all kinds नेट of डिस्कनेक्ट things. हो गया। Okay. जी, ऐसा नहीं है कि देखो एक कंपनी है कि उसको सिर्फ एक ही मॉड्यूल की जरूरत पड़ सकती है, नहीं, ऐसे कुछ कंपनीज नहीं रहते। मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम जो है 2 मॉड्यूल्स हम चाहिए कंपनीज को, 2 मॉड्यूल्स मिनिमम चाहिए। वो कॉम्बिनेशन एमएम और डब्ल्यूएम हो सकता है, एमएम और एसडी हो सकता है, एमएम और एफआई हो सकता है, एसडी एफआई हो सकता है। मिनिमम 2, मैक्सिमम मैंने जितने भी कंपनीज में देखा प्रोजेक्ट्स के अंदर मिनिमम जो 3 मैंने देखा, 2 भी नहीं देखा मैंने, मिनिमम 3 जो है यहाँ पे मॉड्यूल्स देखेंगे। उसके अंदर आपको 3 में भी काम नहीं करना पड़ता, आपके पार्ट में एमएम मॉड्यूल में रहेंगे। समझे एक फ्लिपकार्ट कंपनी है जिसके अंदर आपको लिया गया जॉब के अंदर, तो उसके अंदर आप एमएम को पूरा आप अकेले ही नहीं संभालते, उसके अंदर एक 5-6 लोग रहते, आपका मैनेजर रहता, आपका टीम लीडर रहता, आपके अंदर सीनियर बंदा रहता, आप एक जूनियर बंदे रहते। तो आपको छोटा रोल रहता, उसके अंदर बड़ा रोल नहीं रहता, आपका काम छोटा रहता स्टार्टिंग में। अगर आप एक्सपीरियंस रहता आपको थोड़ा बड़ा काम देते हो, आप अगर आप और सीनियर है तो आपको मैनेजर बनाते, तो ऐसा रहता है इसके अंदर। Okay, okay. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा लाइन। हेलो। बोलिए जी। हाँ सर, ये तो मटेरियल मैनेजमेंट पहला करना पड़ेगा या फिर अपने को वेयर हाउस मैनेजमेंट करना पड़ेगा पहले एसएपी? क्यों बोलते मेरा काम रिलेटेड पूरा इन्वेंट्री पहले करा तो समझ में नहीं स्टॉक्स, आता, हर चीज के लिए स्टार्टिंग एमएम है, हर चीज के लिए स्टार्टिंग एमएम है। स्टार्टिंग एमएम है, एमएम करना पड़ता है आपको। एमएम करेंगे तो ही आपको डब्ल्यूएम समझ में आता, क्योंकि एमएम के पीछे बैक सबसे लास्ट में आता है। एमएम में देखो, कभी भी देखो वेयरहाउस कब काम आता है आपको, मैं जैसे बोला कि कस्टमर आपके पास खरीदने आया, सीधा वेयरहाउस को नहीं जाता कस्टमर, कस्टमर काम को आता है दुकान पे, हाँ दुकान पे आके पूछता भाई मेरे को आइटम होना, तो सेल्स दुकान में। वाला क्या करता है, उसकी दुकान में है नहीं देखता, नहीं है तो क्या करता है वेयरहाउस को बेचता जाके देख के बोल के, तो वेयरहाउस लास्ट में है। तो स्टार्टिंग में जो है पहले एक्टिविटी ये आती, तो फर्स्ट इसको सीखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये कंपनीज का सबसे बड़ा बैकबोन मटेरियल मैनेजमेंट है या वेयर हाउस? मटेरियल मैनेजमेंट एंड वेयर हाउस है ना कंपनी का बैकबोन वगैरह पूरा जितना भी जो। बहुत बड़ा रोल रहता, डब्ल्यूएम का बहुत कम रोल रहता, छोटा। डब्ल्यूएम मॉडल भी आप सीखेंगे बाहर तो डिफरेंस है। एमएम के अंदर देखिए, एमएम अगर कोई 40 डेज में सिखा रहा तो डब्ल्यूएम आपको 10 दिन में सिखाता, 10-15 दिन में, तो ऐसा रहता, तो उसके अंदर कुछ रहता नहीं ज्यादा। अच्छा, डब्ल्यूएम छोटा मॉड्यूल है, छोटा मॉड्यूल है, इसलिए डब्ल्यूएम का हमेशा क्या करते लोग क्लब कर लेते हैं उसको, एमएम डब्ल्यूएम को। डब्ल्यूएम वाले को सेपरेटली हायर नहीं करते लोग कोई भी। कभी भी क्या करता है कंपनी, डब्ल्यूएम वाले को स्पेशली हायर नहीं करते, एमएम डब्ल्यूएम जिसके पास है उसको हायर करते हैं डब्ल्यूएम चाहिए तो। मोस्टली एमएम अच्छा, वाले, एमएम वाला ही चाहिए तो एमएम वाले को ही लेते हो लोग। अगर उसको डब्ल्यूएम चाहिए तो एमएम डब्ल्यूएम जिसको आता है उसको लेते हो लोग। साफ साल एमएम डब्ल्यूएम को ही सीख के है, उसकी एमएम का कुछ भी नहीं आता तो उसकी जरूरत नहीं, उसको नहीं है, वो लोग हायर नहीं करते, ऐसा है। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, ये लोग जो है तो मटेरियल मैनेजमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, रादर देन। एमएम सब एमएम उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर एमएम भी होता है, एसडी भी होता है, डब्ल्यूएम भी होता है, मगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एमएम बहुत बड़ा बैकबोन होता है, मतलब ज्यादा ज्यादा काम एमएम के अंदर रहता, एसडी थोड़ा काम रहता, जी सर, फाइनेंस का थोड़ा काम रहता, डब्ल्यूएम का थोड़ा काम हाँ रहता, हाँ मगर बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। यस। क्यों बोलते हम लोग का काम जैसे कम्प्लीटली रिलेटेड स्टॉक्स, वेयर हाउस और अपना मटेरियल इशू और जी, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट से, एचआर से, ये सब लोगों से इंटरेक्शन है अपना। तो अच्छा तो इसलिए जैसे इस सिलसिले में थोड़ा पूछने का, कंफर्म करने का था। अगर अपने को सैप करना पड़ेगा तो अपने को मटेरियल मैनेजमेंट बेस्ट रहेगा ना। जी, मटेरियल मैनेजमेंट बेस्ट है। और जितने भी लोग फ्रेशर्स है ग्रुप के अंदर, उन लोग के लिए एक चीज बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं जैसे बोला आप लोगों को डोमेन की एक्सपीरियंस की जरूरत है, मतलब एक परचेसिंग में क्या क्या होता है, या एक एंटरप्राइज में क्या होता है, ये फ्लिपकार्ट में क्या होता है, या स्विगी में क्या होता है, जोमेटो में क्या होता है, ये कोई सा भी कंपनी ले लो भाई, कोई सी भी छोटी भी कंपनी ले लो, तो कंपनी में क्या क्या प्रोसेस होता है आपको मालूम हुआ तो आपको समझने की, एक एंटरप्राइज कैसे चलता है समझ में आता है आपको। छोटे भी रहने दो, एक न्यूज एक न्यूज पेपर की कंपनी भी होने दो, या एक छोटा भी वेयरहाउस भी रहने दो, तो कुछ भी जॉब करिए ड्यूरिंग लर्निंग आवर्स। अगर जिसका बीटेक का या डिग्री अभी रिसेंटली हुआ, जो एसएपी सीख रहे हैं अभी, तो पार्ट टाइम कुछ भी जॉब करना, जॉब करिए कुछ ना कुछ, कंपनीज को स्टडी करिए कुछ ना कुछ, लाइक स्विगी में जॉब कर सकते हैं आप, उबर में जॉब कर सकते हैं, या कहीं भी कहीं पार्ट टाइम में जॉब कर सकते हैं, तो आपको समझ में आता है एक प्रोसेस, एक कंपनी कैसे चल रही, क्या प्रोसेस है, कैसा इन लोगों को प्रॉफिट्स मिल रहा। तो वैसा, तो ये एक बिजनेस प्रोसेस को समझना पड़ता है आप लोगों को, ईआरपी समझने के लिए क्या है, एटलीस्ट आपको टच रहना कुछ ना कुछ, ये एक एंटरप्राइज से काम करके है तो आपको थोड़ा समझ में आता है कि एक बिजनेस कैसे चलता है एक्चुअली, तो वो थोड़ा इजी होता है आप लोगों के लिए। मेरा एक सजेशन था, बिखार बात करूं, जी, ये हम लोग अगर कंटेंट प्रिपेयर करें तो ये लोग पहले से जरा प्रिपेयर होते, कंटेंट अगर मिल जाए तो हाँ, मतलब। मैं ऑलरेडी बुक शेयर करा आज। असल में वही बोलने वाला था मैं आप लोगों को, जितने भी लोग अभी इस कॉल में है, कि मैंने ऑलरेडी 3 बुक्स शायद मैंने शेयर किया, वो एसएपी के है।
और ऐसे भी पब्लिशर की तरफ से है वो स्टैंडर्ड बुक, वो स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कीजिए। जितना भी थ्योरी एसएपी के अंदर एमएम के अंदर है वो थ्योरी आपको वहाँ पे मिल जाता है। बहुत अच्छी बुक्स है वो, आप उसके अंदर स्पेंड उसको जो है वीकेंड्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए। सेकेंडली अभी आज का जो सेशन हुआ, कल का जो हुआ, इस सब मिला के एक ही पीपीटी है। ये पीपीटी मैं अभी जो है इस सेशन के बाद मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप के अंदर। ये पीपीटी को जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप, वो बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं आप। इसके अलावा भी गूगल को भी रेफर कर सकते हैं आप, यूट्यूब में भी रेफर कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे सवाल आता है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, वो सवाल आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अगर क्लोज करिए वाइंड अप करेंगे किसी सवाल तो इंशाल्लाह कल हम लोग लेंगे। कल ऑलरेडी 10:07 हो रहा जी, इंशाल्लाह चलिए तो वाइंड अप कर लेंगे। इंशाल्लाह चलिए, ठीक है। और स्पेशली एक चीज़ क्या बताना था मेरे को टाइमिंग के ताल्लुक से, थर्सडे एंड फ्राइडे ये 2 दिन के अंदर जो है 9 to 11 मेरी दूसरी क्लासेस है जिसके अंदर मेरे को अटेंड करना है। तो 8 to 9 हम लोग कर ले सकते हैं उस दिन, या एवरीडे 8 to 9 भी कर सकते हैं अपन, अगर आप लोग फ्लेक्सिबल है तो। ये आप लोग व्हाट्सएप के अंदर इसके बाद कॉल के बाद जो है व्हाट्सएप के अंदर डालिए कि कौन सा आपका फिजिबल टाइम है। स्पेशली मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ थर्सडे एंड फ्राइडे से, एवरीडे आई कैन टेक 9 to 10 मैं ले सकता हूँ, अगर थर्सडे फ्राइडे 9 to 10 मैं नहीं ले सकता। 8 to 9 ले सकता है, या फजर के बाद एवरीडे फजर के बाद 6 to 7 या 7 to 8 मैं ले सकता हूँ। फर्स्ट है। सेकंड 8 to 9 एवरीडे मैं फ्री हूँ, मोस्टली फ्री हूँ मैं 8 to 9। या आप लोग सिर्फ 9 to 10 आपके लिए ठीक है, मगर थर्सडे फ्राइडे हम लोग 8 to 9 कर लेंगे तो ठीक है। तो इसका आपका क्या ओपिनियन है, वो ओपिनियन जो है आपका। या स्पेशल एक काम करिए, आप जो अटेंडेंस शीट आप डाल रहे हैं अटेंडेंस के अंदर, वो अटेंडेंस शीट के अंदर जो क्वेरीज है क्वेरीज के अंदर आप डाल दीजिए कि आप क्वेरी के साथ साथ नीचे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी टाइम डाल दीजिए। लाइक आप चाह रहे हैं कि थर्सडे फ्राइडे मेरा ख्याल ये है कि नेक्स्ट जब क्लास होंगी अपनी कल, तो उसमें आपके पास एक पोल का ऑप्शन है ना, उसमें अच्छा, आप ये क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, हम लोग पूरे उसके अंदर जवाब दे देते हैं इंशाल्लाह। आपको एट ए टाइम मालूम हो जाता है रिजल्ट अभी। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा फिर से अटेंडेंस फॉर्म, उसको वो फिलअप करके भेज दीजिए, इंशाल्लाह देख लेंगे हम। मिस मत करिए अटेंडेंस फॉर्म, एवरीडे जो है इसको फिल करिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर असगर, इंशाल्लाह यही टाइम पे लॉग इन होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।